الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی محمد سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ قرآن میں 3 آیات کی صورتیں 3 ہیں، صرف 3۔ قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا اس وقت کے لوگوں کو کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ 3 آیات کی صورت بھی وہ لوگ بنا کے نہ لا سکے، اور آج بھی یہ چیلنج باقی ہے قرآن کے اندر۔ جو بھی قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو وہ یہ کر سکتا ہے اور اپنا چیلنج پیش کر سکتا ہے، اس چیلنج کو قبول کر سکتا ہے۔ بہرحال 3 آیات کی ایک صورت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی اہم ہے اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر قرآن میں کچھ اور نازل نہ بھی کیا جاتا، صرف یہ 3 آیات کی یہ صورت ہی ہوتی تو یہ ہدایت کے لیے کافی ہوتی ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہیں۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ عصر، سورۃ العصر۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، پہلی آیت ان الانسان لفی خسر، دوسری آیت، تیسری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 3 آیات، اور یہ یقیناً بڑی اہم صورت ہے ہم سب کے لیے۔ اگر اس صورت کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ خطارے سے ضرور بچ جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پہلی آیت والعصر، واو کے معنی آپ سے عرض کیا تھا کہ اور کے معنی ہوتا ہے، لیکن واو کے بعد اگر کوئی ناؤن آتا ہے اور اس ناؤن کے نیچے کسرہ ہے آخری حرف کے نیچے، اس کا یہ قسم ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قسم کھاتے ہیں واللہ، واللہ، عرب بڑے بہت قسم کھاتے ہوئے ملیں گے، ہم لوگ تو خیر نہیں کرتے اتنا، واللہ واللہ کرتے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، والعصر، عصر کی قسم، ال لگا ہوا ہے، اس کا مطلب عصر ناؤن ہے، کسی چیز کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں۔ عصر عین صاد ری، کوئی پہچاننا ذرا بھی مشکل نہیں۔ عصر عین صاد را، عصر یعصر عصرا، عصر یعصر عصرا۔ عصر کے معنی ہوتا ہے ٹو اسکویز۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوس کے پر عربی میں لکھا ہوتا ہے عصیر، جوس کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں عصیر، اس لیے کہ یہ اسکویز کیا جاتا ہے پھل کو۔ لیکن العصر سے ایک اور معنی بھی مراد ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے زمانہ، ایک دوسرا معنی اس کا جو ہم سب جانتے ہیں، عصر کی نماز، عصر کی نماز جو ہوتی ہے وہ بھی عصر کہلاتی ہے، العصر۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में या तो ज़माने की कसम खा रहे हैं या असर की कसम खा रहे हैं। असर बड़ा मानीखेज लफ्ज़ है, इसलिए कि असर के बाद मगरिब बड़ी तेजी से आती है, मगरिब का वक्त होता है। यानी इसका ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं ज़माने की जो तेजी से गुजर रहा है, यकीन गुजर रहा है, बहुत तेजी से गुजर रहा है। वक्त किस तेजी से गुजर रहा है, वी नो इट। कसम खाने के बाद अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इंसान लफी खुस्रिन। इन्ना बेशक, इन्ना और अन्ना दोनों कुरान में बहुत मिलेगा। इन्ना भी अन्ना भी दोनों के मानी बेशक ही होता है, विदाउट डाउट, certainly। इन्नल इंसान, बेशक इंसान, लगा हुआ है तमाम के तमाम इंसान, इसमें जिन्स तमाम इंसान, बेशक तमाम इंसान। ल फी दो हरूफ हैं यहाँ पर, लाम के ऊपर जबर प्लस पे ये फी, ल फी। लाम के नीचे जेर पर तो हम लोगों ने बहुत बात की, इसके मानी होता है लिए, फॉर। कई बार लाम के ऊपर जबर भी आया, लेकिन मैंने कहा इसके मानी भी फॉर ही है। ये अब नोट करें, लाम के ऊपर जब जबर आता है तो ये सर्टेनिटी के लिए आता है। लाजमन, लाजमन, लाम के ऊपर जबर, लाजमन। अब देखिए लाम के ऊपर जबर, लाजमन, लाम के नीचे जेर, लिए, लाम अलिफ ला नहीं। कुरान में इसी तरह आता है कई बार अला, अला अलिफ लगा हुआ, अला जान लो, बी वेयर, बी अवेयर। ला लाजमन, और फी है, फी के मानी है में। बेशक इंसान लाजमन है खुसर, सारा उठाने वाला। खुसर भी वाज़ा है, खा सीन रा, खसारा यखसरु खुसर, खसरन, खसारा यखसरु खसरन, माजी, मुदारा और मसदर। खसरा यखसरु खसरन, इसके मानी होता है नुकसान। खसारा हम लोग उर्दू में बोलते हैं, नुकसान, खसारा हो गया, कारोबार में खसारा हो गया। बेशक इंसान लाजमन है नुकसान उठाने वाला। तमाम इंसान के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ये कसम खा के, अल्लाह को कसम खाने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि जिस दौर में कुरान नाज़िल हुआ है उस दौर में ये बड़ी अहमियत का हामिल था कि लोग अपनी बात को कसम खा के यकीन दिलाया करते। कसम खाया तो इसका मतलब बात सही है, नहीं खाया तो इसका मतलब बात गलत है। इसीलिए कुरान में कसम के बार बार आता है। अल्लाह ताला यहाँ भी पहले कसम खाई है आप अल्लाह ने उस जमाने की जो बड़ी तेजी से गुजर रहा है। दूसरी आयत में कहा बेशक इंसान लाजमन है नुकसान उठाने वाले, हम आप सभी नुकसान उठाने वाले। वी आर बाउंड टू, क्या कहेंगे, खसारा, नुकसान। तीसरी आयत, इल्ला सिवाय, अल्लज़ीना वो लोग, आमनू आमनू व अमीलुस्सालिहाती,
वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र इल्ला सवाए अल्लज़ीना वो लोग सवाए उन लोगों के आमनु ईमान लाए। ये लफ्ज निकला है अलिफ मीम और नून से, जिससे हम उर्दू में लफ्ज बोलते हैं अमन। अमन चैन में है, अलिफ मीम नून। अमीना अमीना या मनु कैसे लिखा जाएगा? या अलिफ अलिफ के ऊपर हमजा और हमजा के ऊपर जज्म। जब भी ऐसा होता है तो बता चुका हूं कि झटके से पढ़ा जाता है। या मनु मीम के ऊपर पेश, सॉरी मीम के ऊपर जबर, नून के ऊपर पेश। अमीना या मनु अमनन अमनन व अमानतन अमनन व अमानतन। क्लियर है? अमनन व अमानतन। इज इट क्लियर नाउ? जी। ईमान लफ्ज इसी से निकला है, मोमिन लफ्ज इसी से निकला है, मामून, इस तरह के अल्फाज और भी मिलेंगे कुरान के अंदर। ये तमाम अल्फाज इसी से निकले हैं। दर हकीकत आमनु के मानी होता है ईमान लाया, वो लोग जो ईमान लाए। दूसरे लफ्जों में वो लोग जो अल्लाह पर, अल्लाह की किताब पर, आखिरत पर तस्लीम किया उन्होंने। दे एक्सेप्टेड इट। ईमान का मतलब है टू एक्सेप्ट इट फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ द हार्ट। ईमान ये नहीं है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया ईमान हो, मैं ईमान वाला हूं। याद रखें, मुंह से इकरार करना तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो दिल से इस बात की तस्दीक करना भी जरूरी है। दिल इस बात को तस्दीक करे कि ये बात जो कही जा रही है ये सच है, तभी ईमान है। इल्लल्लज़ीना आमनु, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व और अमिलुस सालिहात, अमिलु एन मीम लाम, एन मीम लाम, अमीला, अमीला माजी, अमीला माजी, या मलू मुजारा, अमलन मस्तर। अमीला या मलू अमलन। अमल के मानी हम लोग जानते हैं, काम करने को अमल कहते हैं। सालिहात, अस्सालिहात, साद लाम और हा, साद लाम और हा, उससे ये लफ्ज निकला है। इससे माजी सलाहा भी होता है, सलोहा भी होता है, पेश भी आता है और जबर भी आता है। आप ऐसा करें, ये पेश बनाएं दम्मा, उसके नीचे जबर लिख दें लाम के ऊपर। सला, सलाहा, सलोहा दो नहीं आता है। मुजारा यसलहू, यसलहू दो नहीं होता है मुजारा में भी। यसलहू, यसलहू दोनों होता है। और मस्दर सुलहन, सुलहन,
اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں صلح، یہ اسی سے نکلا ہے. اس صلاح کے معنی ہوتا ہے ٹو بی گڈ، اچھا ہونا، صحیح ہونا، ساؤنڈ. صحیح میں ساؤنڈ کیا کہیں گے کہ وہ درست ہونا. عمل الصالحات، یہ دو لفظ ملا ہوا ایک ساتھ آ رہا ہے، عمل الصالحات. اس کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے نیک اعمال کر دیتے ہیں لوگ، یا اچھے اعمال، اچھے کام. اب یہ بات نوٹ کریں جو میں کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ اچھا کام کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے، یا کیا جائے یا نہ کیا جائے. نہ کرنے کا کام نہیں کیا جائے، کرنے کا کام کیا جائے. یہ دونوں ہی عمل الصالحات ہیں. جو کرنے کا کام تھا وہ کیا، جو نہیں کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا، اپنے آپ کو روک لیا. تو سوائے اس کے جو ایمان لایا اور جس نے وہ کام کیے جو اللہ رب العزت کے ہدایات کے ہیں، رہنمائی کے ہیں، نصیحتوں کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہیں، وہ کام کیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا یہ لفظ نکلا ہے واو، صاد اور یا. واو، صاد اور یا. اس کا ماضی ہے وسا. کیسے لکھا جائے گا؟ واو، صاد اور یہ کے اوپر کھڑا زبر، وسا. جیسے لکھتے ہیں ہم لوگ موسیٰ، عیسیٰ، اسی طرح وسا. مضارع ہے یسی، یسی، یسی. اور مصدر ہے وسین، وسین. اس کے معنی ہوتا ہے وسا، جوائن کرنا، دو چیزوں کو ملانا. لیکن انہی حروف سے واو، صاد، یا، اس میں ایک صاد بڑھا دیا گیا ہے. میں نے کہا تھا کہ قرآن کے بیشتر الفاظ 3 حرفی ہیں، لیکن ان 3 حرفی سے کبھی کبھی 4 حرفی الفاظ بھی بناتے ہیں، کبھی 5 بھی بنا لیتے ہیں، اور کبھی 6 بھی بنا لیتے ہیں. یہ میں چاہتا ہوں یہ بھی نوٹ کر لیں. وسا، وسا، صاد کے اوپر تشدید، شدہ، وسا. مضارع اس کا یوسی، یوسی. یہ کے اوپر پیش، واو، زبر، صاد کے اوپر تشدید اور زیر، اور پھر یا کے اوپر جزم، یوسی. اور اس کا مصدر ہے توسیتن، توسیتن. تو تے کے اوپر زبر، واو پر جزم، تو سیتن. صاد کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر، اور تا کے اوپر بولتا ہے اس کے اوپر 2 زبر، تو سیتن. اس کی ایک اور شکل بھی نوٹ کر لیں. اوسا، الف کے اوپر زبر، واو اور صاد کے اوپر کھڑا زبر، اوسا اور یا، اوسا. مضارع یو سی، صاد یہ اور یہ کے اوپر جزم، یو سی. سوری میں نے غلط کہا، یو وسی،
नहीं, सॉरी, यू सी सही है, यू सी साद के नीचे जेड, यू सी, इसमें साद एक बार आया है, शुरू में अलिफ लग रहा है, और सा शुरू में अलिफ लग रहा है, यू सी, और मसदर है इसका ईसाअन, ई सा अन, हमजा के ऊपर दो जबर और अलिफ, ईसाअन। ये शक्लें मैंने आपको बताई कुरान में अलग अलग मुकाम पर अलग अलग शक्लों में, लेकिन बुनियादी तौर पर वाव साद ये से निकला हुआ ये लफ्ज। वतवासौ बिल हक, हक, हा काफ काफ, हक। फिर आ रहा है वाह, और फिर आ रहा है तवासौ, फिर वही लफ्ज बिस्सब्र, बिस्सब्र, साद बा रा, इससे माजी है सबारा यस्बिरु सब्रन, सबरा यस्बिरु सब्रन। अब आइए मानी की तरफ, वतवासौ, वतवासौ के मानी है एक दूसरे को नसीहत करना, एक दूसरे को तलकीन करना, एक दूसरे को बताना, क्या, बिलहक, जो सच्चाई है वो बताना। और फिर आया वतवासौ, एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को तलकीन करना, एक दूसरे को समझाना, किस चीज का, सब्र। सब्र के लफ्जी मानी होता है जमे रहना, लफ्जी मानी सब्र के जमे रहना है। किसी चीज पर आप स्टैंड ले रहे हैं, वो है सब्र, टू टेक स्टैंड, तो ये सब्र। अब ये तीसरी आयत का पूरा मतलब देखें, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह की अतात और फरमाबरदारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा किया उन्होंने, और एक दूसरे को हक की, सच्चाई की तालीम दी, तो वसीयत की, उन तक पहुंचाया, उनको समझाया हक की बात। हक क्या है? अल्लाह की किताब हक है, सच्चाई, इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं है। और एक दूसरे को इस पर कायम रहने के लिए, इस पर कायम रहने के लिए तलकीन की, समझाया। इस तीसरी आयत में एक तो काम हो गया इनफरादी करने का, ईमान लाना, और अमल सालिहात, वो अमल जो साले हैं वो करना। अगला टुकड़ा जो है वो अब वो बात कर रहा है जमात की, मुसलमानों की जमात में एक दूसरे को हक की तलकीन करना, हक को वाज़ा करना, हक को बताना, सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, उनको बताना। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना, और एक दूसरे को फिर वही सब तलकीन करना, समझाना, बताना, किस बात का? सब्र का, कि अल्लाह इस बात पर, हक पर जमे रहो, टेक योर स्टैंड ऑन राइटियसनेस, हक पर जमे रहो। ये वो काम है जो इनफरादी भी है और इज्तिमाई भी है। जन्नत में ये सोचना हम अकेले चले जाएंगे आराम से, मुमकिन नहीं। खसारा का जो लफ्ज कुरान इस्तेमाल करता है वो हर जगह कुरान में, जन्नत हाथ से गई और जहन्नम की सजा मिली, ये है खसारा। जो मिलना चाहिए था इनाम वो तो हाथ से गया, चलो कोई बात नहीं, कुछ ना होता उसके बाद, नहीं,
उसके बाद जहन्नम की सजा पाना। आखिरत में दो ही जगह हैं, या तो जन्नत है या जहन्नम है, तीसरी कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस इन बिटवीन, कोई जगह नहीं है। तो ये दरमियान में एक जगह का जिक्र आता है कुरान की सूरत में, है ना, वो जो वहां पर कुछ देर लोग रहेंगे, कुछ लोग, लेकिन उनको जाना ही नहीं दो जगहों पर है, या तो जन्नत में या जहन्नम में। तो बहरहाल, तो इसलिए ये खसारा, अगर इंसान अपने आप को खसारा से बचाना चाहता है, जबकि खसारा उसकी किस्मत में लिख दिया गया है, तमाम के तमाम इंसान खसारा उठाने वाले हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाएं, जो अमल सालेह करें, जो एक दूसरे को हक की तलकीन करें, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। परेशानियां आती हैं, लेकिन परेशानी में अल्लाह के रास्ते से नहीं हटना, हक से, हक को नहीं छोड़ना। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं इंसान के अंदर, लेकिन हक पर जमे रहना, ये है कामयाबी का रास्ता। बहरहाल ये सूरत अहमियत की हामिल थी, इसलिए मैंने इसको ज़रूरी समझा कि अब मैं आज कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको जो आप नोट करेंगे। नाउन तो बहुत सारे हम लोगों ने अब तक देखे। नाउन की पहचान ये है कि अगर अल लगा हुआ है तो नाउन है, अगर अल नहीं लगा हुआ है तो आखिरी हरूफ के नीचे दो जेर या दो जबर या दो पेश आएगा, नाउन। लेकिन आप जानते हैं कि नाउन के साथ प्रोनाउन भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको उर्दू में ज़मीर कहते हैं। ज़ाद मीम ये रे, ज़मीर, जिसकी जमा ज़मायर है, ज़मायर, ज़मायर। सबसे पहले थर्ड पर्सन की बात करते हैं। हुआ, गोल है, दो चश्मी है, वाव, हे के ऊपर दम्मा, वाव के ऊपर फतहा, हुआ। हुआ इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए, मुज़क्कर के लिए, जैसे हम अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ही प्रोनाउन है, हुआ का तर्जुमा होगा ही। अगर मुअन्नस हो तो हेया, हा के नीचे जेर, या के ऊपर जबर, हेया। जैसे इंग्लिश में कहते हैं शी, ये जो ज़मीर है एक के लिए आएगा, वाहिद के लिए। वो अकेला मर्द हुआ, वो अकेली औरत हेया। अगर दो हो तो आता है हुमा, हा के ऊपर पेश दम्मा, मीम अलिफ, मीम के ऊपर जबर, हुमा। दो मर्द भी हों या दो औरतें भी हों, हुमा आएगा। एक मर्द और एक औरत हो, उनके लिए भी हुमा आएगा। दो के लिए हुमा। ये सारे सेगे गायब के हैं, थर्ड पर्सन। अच्छा, अगर जमा हो, एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, तो हम, हा के ऊपर पेश, मीम के ऊपर जज़म, हम। फॉर लॉट ऑफ मेल पीपल, मेल, दे। लेकिन दे अंग्रेजी में औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ दे जो मर्द के लिए है उसमें आएगा हम, फॉर मेल। अगर औरतें हो बहुत सारी तो हुन्ना, हे के ऊपर पेश, नून के ऊपर तशदीद और उसके ऊपर जबर, हुन्ना।
बहुत सारी औरतें, है ना, बहुत सारे मर्दों के दरमियान अगर औरतें भी घुसी हुई हैं, मर्द औरत दोनों हैं, तो ऐसी हालत में हुम ही बोला जाएगा, हुम। वहां पर हुन्ना इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी औरतें ही हैं तो वहां पर हुन्ना इस्तेमाल किया जाएगा, हुन्ना। ये हुआ थर्ड पर्सन, जिसको मैंने कहा था, पहले बताया था, गायब। ये वो ज़मीर है, प्रोनाउंस है, जो गायब के लिए है, जो मौजूद नहीं। अब आइए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन पहले सिंगल के लिए अंत, अंत, अलिफ नून के ऊपर जज़म और ता के ऊपर फतह, अंत। अंत के मानी तुम, यू, और यू कौन है? मेल है। अंत, दर हकीकत इसको ऐसे पढ़ा जाता है, देखिए जरा गौर से, अंता, अंता, गुन्ना कर देते हैं नून को, अंता। इसको अंता नहीं करते, अंता, गुन्ना कर देते हैं, नून को गुन्ना कर देते हैं। और अगर फीमेल हो तो अंती, ताकि नीचे जेल लग गया, अंती। पढ़ेंगे कैसे? अंती, अंती। अगर दो हों तो अंतुमा, अंतुमा, अलिफ नून ता के ऊपर दम्मा मीम अलिफ, अंतुमा। थर्ड पर्सन के लिए था हुमा, यहां पर आ रहा अंतुमा। दो से ज्यादा हो तो अंतुम, अंतुम, अलिफ नून ता के ऊपर दम्मा मीम के ऊपर जज्म, अंतुम। ये मेल के लिए होगा अंतुम, और फीमेल के लिए होगा अंतुन्ना, अंतुन्ना, अलिफ नून ता के ऊपर दम्मा नून के ऊपर शद्दा और जबर, अंतुन्ना, अंतुन्ना, फीमेल। तो सेकंड पर्सन के तीन फॉर्म हो गए, सिंगल जिसको वाहिद कहते हैं, तस्निया दो के लिए, और जमा ज्यादा के लिए। उसी तरह थर्ड पर्सन के लिए मैंने पहले बताया, अब ये सेकंड पर्सन का मैं अभी बताया। अब आइए फर्स्ट पर्सन, मुतकल्लिम, बात करने वाला। अना, अलिफ नून अलिफ, नून को बरजबर। मैं बता चुका हूं कि अना नहीं पढ़ते, इसको अना पढ़ते हैं, पिछली बार मैंने बताया था, अना। लेकिन लिखा जाता है नून अलिफ और उसके ऊपर जबर, अना। सिंगल पर एक आदमी के लिए, और ज्यादा आदमी अगर हैं, जैसे आई, अना हुआ आई, और नहनो हुआ वी, वी, वी आर, नहनो। नून हा, ये हा है, हलवे वाली हा, और नून, नून के ऊपर जबर, हा के ऊपर जज़म, और नून के ऊपर दम्मा, नहनो, नह, नह, नह। मेरी आवाज नोट करें, हा की आवाज यहां से आती है, नह, नहनो। और वो जो गोल है, दो चश्मी होती है, वो यहां से आवाज निकलती है, हा की, हो यहां से, अना नहनो। ये मुतकल्लिम हो गया, आइदर वो आई होगा या वी होगा। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, थर्ड पर्सन हुआ, हेया, हुमा, हुम, हुन्ना,
सेकंड पर्सन अंत, अंति, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, फर्स्ट पर्सन अना, नहनु। इन ज़मायर को कहते हैं ज़मायर, लिखिए जरा, ज़मायर मरफूउन, मरफूउन, आइन के ऊपर दो पेश, मरफूउन, मुनफसिलुन, मुनफसिलुन, मुनफसिलुन। लिख लिया आपने, ज़मायर मरफूउन मुनफसिलुन। ज़मायर तो क्लियर हो गया, ज़मीर की जमा। मरफूउन, ये लफ्ज आ गया है बीच में। ये मरफून इस बात को जाहिर करता है कि ये तमाम के तमाम ज़मायर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। They can be used in a sentence as a subject. जैसे हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। हुवा वो, अला ऊपर, ये अला का लफ्ज हुरूफ जर में से है, ऊपर। कुल का माने सब जानते हैं, हर चीज, शै चीज, हर शै, कुल्ल शै हर शै, कदीर कादिर है। हुवा अला कुल्ल शैइन कदीर, हुवा अल्लाह के लिए आ रहा है, अल्लाह हर शै पर कादिर है ना। इसी तरह ये तमाम के तमाम ज़मायर मरफून इसीलिए कहा गया कि दे कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एलोन। और मुनफसिल का माने होता है अलग, मुनफसिल अलग, मुत्तसिल कहते हैं मिला हुआ को, मुत्तसिल मिला हुआ, मुनफसिल अलग। यानी ये तमाम के तमाम ज़मायर जो अभी हमने देखे, ये सब के सब अलग ही आते हैं, किसी लफ्ज के साथ नहीं जोड़ेंगे, अलग आएंगे, मुनफसिल अलग। टाइम हो गया है ना, यहीं पर मैं रुकूंगा। आई डोंट वांट यू टू ओवरलोड। मैंने अभी जब सूरत अल-असर पढ़ी, मैंने आपको अल्फाज की गिनतियां नहीं बताई कि कौन सा लफ्ज कितनी बार आया, जानबूझ के मैंने छोड़ दिया। अब जरूरत नहीं है इसकी, अब तक तो अंदाजा हो गया होगा कि कुरानी अल्फाज कितनी बार कुरान के अंदर आए। थोड़ा टाइम लगाएं इन चीज़ों पर। अब ये जो ज़मायर मैंने आपको बताया, पता नहीं कितनी बार आए हैं, हर सफ़े पर, कुरान के हर पेज पर कोई ना कोई ज़मीर आपको मिल जाएगा। अना, नहनो, या हुआ, हुमा, हुम, या अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, बल्कि ज़्यादा भी मिल जाएगा। इनको जरा देखें, थोड़ा सा गौर करें इन पर। फिर आज भी हम लोगों ने देखा है कि जब भी माजी से मुजाहरा बनाया गया तो पहले या लग गया है ना। एक दो नहीं, कई अल्फाज मैंने आपको दिखाए। खसरा यखसरू, यखसरू या लग गया, और बाद के हर्फ पर जज़म आया, यखसरू। असरा यासरू, ऐन के ऊपर जज़म आ गया, यासरू। सलह यसलहू, या यसलहू या यसलहू, स्वाद के ऊपर जज़म आ गया। अमेला याअमलू, ऐन के ऊपर, पहले हर्फ के ऊपर
پھر جزم آ گئی یا عملو، یا لگا اور عین کے اوپر جزم آ گیا یا عملو. صبر یصبر، صاد کے اوپر پھر جزم آ گیا. نوٹ دس، یہ اس سے ایکوینٹ ہو جائیں اچھی طرح سے. یہ 3 حرفی لفظ سے مضارع بننے میں یہ 2 چیزیں تو معلوم ہو گئی ہمیں. جب بنتا ہے تو اب پہلے یا لگ جاتا ہے، اس کے بعد جو پہلا حرف ہے اس پر جزم لگ جا رہا ہے. الا جہاں پر حروف علت ہے وہاں پر معاملہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے، اس کو بھول جائیں. حروف علت بہت سارے الفاظ میں نہیں ہے. ابھی جو دیکھا اس میں حروف علت والا صرف ایک ہی لفظ ہے، واو ساد یہ یا امانا آیا ہے، الف میم نون الف ہے اس میں، باقی تو سب حروف علت کے بغیر ہے. اسی تو کہ کوئی سوال آپ لوگوں نے کرنا ہے؟ اینی کوشچن؟ نہیں فی الحال تو کوئی ساری چیز لکھ لی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آصف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری باڈی از سیئنگ دیٹ، اس لیے کہ ہاں آپ ہی سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں پہلے. چلیں الحمدللہ، انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلی بار انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی. میں شاید کچھ صورتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. اس میں 2 صورتیں تو وہ ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ آپ پر نازل ہوئی ہے، یہ آپ ہیں اس کے مخاطب، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں. 2 صورتیں ایسی ہیں، لیکن افسوس کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو کیا ہم کو کیا اندازہ ہوگا. بہرحال اگلی بار دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے تو یہی اتنا، یہیں پر بس کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.